स्टूडेंट्स ज्यादा तौर पर कह रहे होते हैं कि ये टेंस बहुत मुश्किल है. दिस इज नॉट डिफिकल्ट. पुट हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस. क्या आप लोगों ने इन द बिगिनिंग के बारे में कभी सुना है? और उसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सो एक बड़ा समंदर बन जाएगा, टू बी ऑनेस्ट. So verb सीखो and boost up your speaking skills properly if you want to become a fluent speaker. चुका है, चुकी है, चुके हैं. By the name of Allah subhanahu wa ta'ala, who is the most merciful and beneficent, whose love is our life, whose worship is our faith, who gives us life and who causes us death. So, hello dear viewers, this is me Nasrullah. Right now you're watching my YouTube channel by the name of Al Nasr English Skills and Vlogs. And today's video I'll be talking about present perfect tense. ये tense students के लिए थोड़ा complicated है as compared to present simple and present continuous tense. Students ज्यादा तौर पर कह रहे होते हैं कि ये tense बहुत मुश्किल है. This is not difficult, but the way you are trying to learn this tense, you're going to confuse yourself. जिस तरीके से आप लोग इस टेंस को सीख रहे हो, आप खुद अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो. ये टेंस बहुत इजी है. कीप वाचिंग माय वीडियो, इंशाल्लाह देयर विल बी नथिंग. गॉट इट? इट विल बी माइंड ब्लोइंग इंशाल्लाह. ओके, सो इस टेंस के उर्दू पहचान के बारे में अगर मैं कुछ बताऊं, उर्दू पहचान से पहले मैं ये बताऊंगा कि व्हाई डू वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड हाउ डू वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और कब करते हैं. ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो मौजूदा जमाने में मुकम्मल हो चुके हो. लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं कि मैं चाय पी चुका हूं. ये काम अब इस मौजूदा जमाने में मुकम्मल हो चुका है. आई विल से दैट आई हैव टेकन टी. यू विल अंडरस्टैंड दिस टेंस वेरी इजीली. जस्ट कीप वाचिंग माय वीडियो. उर्दू पहचान के बारे में अगर मैं बताऊं, इसका उर्दू पहचान कुछ इस तरह होगा कि जुमलों के आखिर में आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, गार्ड लिया है वगैरह. ओके, ये है उर्दू पहचान. चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है वगैरह. Got it? Now come here to the structure. When I'll talk about the structure of present perfect tense, first of all we have to put subject, thereafter helping verb. Now have and his we have to put here because have and his are helping verbs here. Got it? Thereafter we have to put third form of verb plus subject. It is very easy. Just keep watching my video. Inshallah there will be nothing. Now what is subject? As I have already told you, the doer of an action is known as subject. काम करने वाले को क्या कहा जाता है? फाइल. Got it? Let's suppose मैं कह रहा हूं कि वो क्रिकेट खेल चुका है. कोई तो क्रिकेट खेल चुका है. ये काम करने वाला कौन था? फाइल कौन था? That person is subject. Let's suppose he has played cricket. He is subject here. If you have any sort of problem, you can watch my videos I have made about subject, verb, object. What is subject, verb, object? Inshallah you will understand. The second thing we have to put helping verb here, have and has. यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाना है? have और has लगाना है. अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि have को हम कहाँ पर लगाएंगे और has को कहाँ पर लगाएंगे. ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ. Just keep watching. Now with I, we, they, you and plural, now we have to put have. With he, she and singular noun, हमने क्या लगाना है? His. It's very easy, you will understand. When I'll talk about this verb here, verb आप लोगों ने यहाँ पर लगाना है third form. And I would like to recommend my students, if you want to boost up your speaking skills, बहुत ज़्यादा तलबाई सवाल पूछते हैं कि हम इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं लेकिन हम नहीं बोल सकते. Why we are unable to speak English fluently? Because we have no verbs. I mean that like a vocabulary. हमारे पास verbs नहीं है, vocabulary नहीं है. That's why we are unable to speak. So I'm going to recommend everyone that you should learn at least 5 words per day. 5 verbs जो है ना, आप लोग रोजाना सीखो. रोजाना के बेस पर आप लोगों ने आज सीखा राइट, इसका सेकंड फॉर्म भी सीखो, थर्ड फॉर्म, और इस तरह पार्टिसिपल फॉर्म जो है ना, इस तरह जो हम SES का एडिशन करते हैं वो वाला, write, wrote, written, writing, writes. इस तरह take, took, taken, taking, takes. इस तरह shake, shook, shaken, shaking, shakes. Got it? Write, wrote, written, writing, writes. And play, played, played, playing, plays. So many verbs. अगर आप लोग रोजाना 5 सीखोगे ना और उसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सो एक बड़ा समंदर बन जाएगा, to be honest. So verbs सीखो and boost up your speaking skills properly if you want to become a fluent speaker. Now
Come here to the structure. First of all, we have to put subject, thereafter helping verb. Helping verb में have और his, फिर verb का third form लगाना है. Third form के बाद हमने object का इस्तेमाल करना है. Let's suppose मैं कह रहा हूँ कि वो क्लास ले चुका है. वो क्लास ले चुका है. First of all, we have to think about the subject. Okay. And now come here to the structure. A structure में अब हम सबसे पहले किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं कि वो क्लास ले चुका है. अब वो जब आता है ना सिंगुलर, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ही. सो मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुका हूं ही. आई हैव रिटन हियर ही. ही के साथ किस चीज का इस्तेमाल करना है? हैज. ही हैज. नाउ व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ टेक? टेक, टुक, टेकन. ही हैज टेकन क्लास. इट्स वेरी सिंपल. अब अगर मैं कह रहा हूं कि वो खत लिख चुका है, he has written a letter. मैं बाजार जा चुका हूं, I have gone to बाजार. Got it? मैं खाना खा चुका हूं, I have eaten meal. I have eaten meal. वो रोजा रख चुकी है, she has taken fast. वो क्रिकेट खेल चुके हैं, they have played cricket. It's very easy. Nothing will be here, inshallah. Got it? If you have any confusion, you can make sentences again and again and practice it. Repetition will boost up your skills, inshallah. Now go ahead. अब अगर मैं यहाँ पर singular noun के हवाले से बात करूँ, so singular noun के हवाले से मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आप लोगों को दे दूंगा. आतिफ have played cricket. What do you think? क्या ये सही है? आतिफ have played cricket. क्या ये सही है? आतिफ हैव प्लेड क्रिकेट. आतिफ सिंगुलर है. सिंगुलर नाउन के साथ हमने किस चीज का इस्तेमाल करना है? हैज. आतिफ हैज प्लेड क्रिकेट. यार यू गाइज आर स्लीपिंग इन द ईयर ऑफ एन एलिफेंट. बी एक्टिव एंड लिसन टू मी. ओके. नाउ अगर मैं आई वी दे यू और फ्लूइड नाउन के हवाले से बात करूं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि मैं खत लिख चुका हूं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज द डूअर ऑफ एन एक्शन? आई हैव टू पुट आई. गर्ल. आई के साथ क्या लगाना है? हैव. आई हैव. अब लिखना, मैं खत लिख चुका हूं. फर्स्ट फॉर्म इज राइट, रोट, रिटन. इसलिए मैं कह रहा हूं, बार बार मैं कह रहा हूं कि वर्ड सीख लो एंड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. गाइड. आई हैव रिटन अ लेटर. नाउ अगर मैं इस टेंस के नेगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताऊं, सो नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी है. हाउ नेगेटिव स्ट्रक्चर इज वेरी इजी. जस्ट पुट नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. पुट नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. लिसन टू मी फॉर अ व्हाइल. पुट नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. जो हेल्पिंग वर्ब है ना, उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ नॉट लगाना है. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव. सो अगर मैं नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाऊं, नेगेटिव में मैंने क्या करना है? जस्ट पुट नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. सो किस तरह बनाएंगे? ही. नेगेटिव इसका किस तरह क्या होगा? ही हैज नॉट टेकन क्लास. गुड, शाबाश. दूसरा वाला बनाओ. I have not written a letter. Put not after the helping verb. Just apply this formula. It's very easy. Now come here to the interrogative structure. Interrogative में हमने क्या करना है गाइड? ये जो interrogative structure है ना, इसमें हमने क्या करना है? Put helping verb in the beginning of sentence. क्या आप लोगों ने in the beginning के बारे में कभी सुना है? If you haven't heard, just search on YouTube in the beginning. I mean that's right over there in the beginning. So वहाँ पर एक funny clip होगा. You will enjoy इंशाल्लाह. आप लोग ज़रूर हंसोगे if you will watch that video for the first time. So I was just kidding with all of you. In the beginning of sentence, put helping verb in the beginning of sentence. Yeah, in the beginning of sentence. It's up to you. हेल्पिंग वर्ब को जुमले के बिगिनिंग में लगाना है, मतलब जुमले के शुरुआत में. किस तरह? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज. गॉट इट. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव. गॉट इट. और
आखिर में यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ये तो हर किसी को पता है कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो है ना उसमें जरूर क्वेश्चन मार्क होगा। सो अगर मैं इसका आप नेगेटिव बनाऊं, ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, ही हैज नॉट टेकन क्लास, आई हैव नॉट रिटन लेटर। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब को जुमले के बिगिनिंग में लगाना है। हैज ही टेकन क्लास। दूसरा वाला क्या होगा, हैव आई रिटन लेटर, आखिर में क्वेश्चन मार्क। सो व्हाट डू यू थिंक, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। अब अगर मैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव के हवाले से कुछ कहूँ आप लोगों के साथ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव इस तरह किस तरह होगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताऊं, सो नेगेटिव इंट्रोगेटिव इसका इस तरह होगा कि फुट हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। गर्ड, इट्स वेरी इजी। आप लोगों ने क्या करना है, सेम फार्मूला है वही, हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव सेंटेंस के बिगिनिंग में लगाना है। अभी आप यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस ही है ना, क्या आप देख रहे हो, ही हैज नॉट टेकन क्लास, आई हैव नॉट रिटन लेटर। इस नेगेटिव जुमले के बिगिनिंग में आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को पुट करना है। गर्ड, सो किस तरह बन जाएगा, फुट हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। ये नेगेटिव सेंटेंस है, इस जुमले के बिगिनिंग में हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। फॉर व्हाट, टू मेक नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। गर्ड, सो हैज he not taken class, क्वेश्चन मार्क। यहां पर नेगेटिव सेंस भी बनता है और इंट्रोगेटिव भी। हैज ही नॉट टेकन क्लास, गर्ड। दूसरा वाला जो है ना, हैव आई नॉट रिटन अ लेटर। नाउ जस्ट लेट मी समराइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर 1 or 2 minutes। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उर्दू पहचान जो है ना, चुका है, चुकी है, चुके है, लिया है वगैरह। गर्ड, स्ट्रक्चर जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो है फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देयर आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लोगों ने वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है, और इसके साथ ऑब्जेक्ट। विद आई वी दे यू प्लूरल नाउन वी हैव टू पुट हैव। विद ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन वी हैव टू पुट हिज। सो यहाँ पर ही है, ही के साथ हमने हैज को लगाना है। ही हैज थर्ड फॉर्म फॉर टेकन क्लास, आई हैव रिटन लेटर। वो खत लिख चुका है, लेट्स सपोज ही हैज रिटन लेटर, मैं खत लिख चुका हूँ, I have written later, I have a chest infection, sorry for this. And the other thing, if you want to make negative structure, so put not after the helping verb. जब भी आप नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो ना, नेगेटिव स्ट्रक्चर में आप लोगों ने क्या करना है, नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लोगों ने नॉट लगाना है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज है, यहाँ पर हैव है, सो ही हैज, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओ, ही हैज नॉट टेकन क्लास, आई हैव नॉट टेकन क्लास, या आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। ओके, जो तीसरा है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, सवाल या जुमला इस तरह बनेगा कि पुट हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। जुमले के बिगिनिंग में आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज हैव है, इसको जुमले के बिगिनिंग में लगाना है। हैज ही टेकन क्लास, आखिर में क्वेश्चन मार्क। हैज ही टेकन क्लास, हैव आई रिटन अ लेटर, या हैव आई गॉन टू बाजार, आखिर में क्वेश्चन मार्क। अब जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, पुट हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव सेंटेंस के शुरुआत में लगाना है। ये नेगेटिव सेंटेंस है, ही हैज नॉट टेकन क्लास, ये है हेल्पिंग वर्ब हैज। सो यहाँ पर मैं हैज लगाऊंगा, हैज ही नॉट टेकन क्लास, हैव आई नॉट रिटन लेटर। Got it? So it was a short topic about present perfect tense. If you have any sort of question, you can ask freely. And thanks for watching. Love and respect. See you in the next video. Allah Hafiz.